Good morning, everyone. I'm audible to all of you. चलो, हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? इसके आगे पढ़ेंगे। पार्थेनोजेनेसिस। Which phylum हमने the phylum what you have already completed? आर्थ्रोपोडा हमने कंप्लीट कर लिया था और वी आर सपोज टू स्टार्ट आर्थ्रोपोडा। अच्छा, मैंने जस्ट आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया होगा, है ना? यस, चलो, यस, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे। विल कंटिन्यू एंड विल स्टार्ट द आर्थ्रोपोडा। चलो, so arthropoda means we can call it as the meaning of this name of this phylum. सॉरी, देखो, आर्थ्रोपोडा जो है दो वर्ड से आया है। एक है आपका आर्थोस, दूसरा होता है पोडास। आर्थोस मतलब jointed, पोडास मतलब appendages. So the animal which are having jointed appendages are known as arthropoda. So the taxonomist, one taxonomist whose name was von Siebold. Von Siebold. So he was a scientist who actually first time who recognized this group of animal and proposed the term which is also known as arthropoda. He was the person who actually proposed the term that is arthropoda. Chalo. Next, the phylum Arthropoda, it includes almost 9 lakh species. Almost 9 lakh species. And this is the largest phylum of animal kingdom. Animal kingdom का सबसे बड़ा phylum यही है आपका Arthropoda. इसमें सबसे बड़ा class जो हमें मिलेगा that is Insecta. It is the largest biggest or the largest class in the animal kingdom. ठीक है? Now,
Where we can find this arthropoda? We can find them on the land. Habitat क्या है इनका, हम कहाँ पे मिलेगा ये? We can find it in on land, ठीक है? In the soil, in the sea water, in the fresh water, and the bodies of the inside the body of the animal, inside the body of the plants as parasite. So they are everywhere. We can find them everywhere. हमें लैंड में मिलेगा, हमें सब मतलब ओशन में मिलेगा, हमें फ्रेश वाटर में मिलेगा. आई थिंक चलो अभी एक सवाल आप लोगों से पूछते हैं. I think you can see that I am yawning multiple time today. What is the reason of yawning? You know that? Yawning का बताओ तो biological reason क्या होता है? Why I am yawning? What are the possibilities? Okay, sir, these are the possibilities that you are yawning because of that. Yes, the lack of oxygen. So maybe in my body there is a lack of oxygen, or also possibility is that in my room where I'm actually taking your class, the possibility is that there is a lack of oxygen. So that is why I'm yawning. Okay. Jay Kumar is saying, sir, go and do some exercise. Okay, then bye. I'm not taking your class. You only said na. Okay, then I'll go and do some exercise. चलेगा ना? अच्छा, not now. फिर कब? मुझे मौका दिया मैं भाग जाऊंगा. I will utilize the opportunity, What is the opportunity you give me, I'll utilize. Chalo, I will adjust, no issue. In early morning, Jay Kumar is suggesting you do exercise. Actually, I am not doing exercise for many months. I need to come back again. I also do have to exercise. Okay, I'll try. I'll try to start. Let's see when I'll start. Prashant is saying I'm doing it midnight. Very good. You continue. Yeah, one day you will cross Baba Ramdev also. You'll be more famous than Baba Ramdev. At least he is doing in day. You are doing at midnight. All your followers will be Bhoot, Pret, all these people. Dracula, vampires, they will come. Okay, and they will get training from you. Chalo. Fine. So, von Seibold, he was the taxonomist, scientist, who recognized this group for the first time. Okay? And the phylum is actually having almost 9 lakh species. Kitne species hai is phylum mein? Almost 9 lakh species hai. And this is the largest phylum. And in the same phylum, we'll find the largest class also, that is insecta. So सबसे बड़ा जो क्लास है वो भी हमें इसी फाइलम में मिलेगा, और ये सबसे बड़ा फाइलम है हमारे एनिमल किंगडम का. ठीक है. अच्छा, कहाँ पे हमें मिल सकता है? ये हमें हर जगह पे मिल जाएगा. हमें लैंड में मिल जाएगा, हमें ये ओशन में मिल जाएगा, हमें ये सी वाटर में, हमें फ्रेश वाटर में, and even they are also living as parasite inside the animal and also inside the body of the plant as well, है ना? So we can find them everywhere. So they're actually highly diverse. So we can find them in all the places, in all the different types of habitats. They can survive. Okay. So that is why, because they are able to survive in most of the habitat. That's why they are the largest group. Okay. Next, they have what? They have the jointed appendages. Obviously, the phylum name itself is Arthropoda. इसका मतलब क्या है? इस phylum में जितने भी animals है, they all are having jointed appendages, right? So they have jointed appendages. Now the body consists of 3 parts. Just give me 1 minute. Sorry, in between my son, he is coming and disturbing me. मेरा बेटा आ जाता है. Sorry for that. Okay, now he left. No issue.
So let us continue. Now they have jointed appendages and the body is segmented. अब बॉडी इनका क्या होता है, बॉडी इनका सेगमेंटेड होता है. वी कैन फाइंड देयर आर लॉट ऑफ सेगमेंट्स इन देयर बॉडी. ठीक है. Yeah, he is cute, but he is very naughty. Once you, if I allow him na, then he will not allow me to take class. एक बार इधर आ गया ना तो तुम्हारा क्लास नहीं, मुझे कोई क्लास नहीं ले देगा. He will start crying and he will not stop. It will take 30 minutes to take care of him. तो तुम्हारा क्लास खराब हो जाएगा. इसीलिए that's why always in the beginning I said go, because if he sit in the front of the laptop he will he will try all the switches. That's a big problem. Okay, some he is very naughty and very cute both at the same time. Chalo. Oh, he is only now he's 2 year 5 months. Chalo. ठीक है, I will show you one day when everything is under control. One day I'll try to show you. Don't worry. चलो ठीक है. So let us continue. So first of all, what we'll do, we'll try to discuss the points about the phylum. Then I will show you the slides. You can write down later on. ठीक है, पहले discuss करते हैं सारा general characteristic features. See, whatever I will discuss, all the points you can see on the screen and you can write down. ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं. चलो एक मिनट, थोड़ा इसको बंद कर देते हैं. Okay. Chalo. Now the body, their body can be divided into 3 parts. One is your head. Their body can be divided into 3 parts. Head. Then we have thorax. And then we have abdomen. तो जो आर्थ्रोपोडा है इनका जो बॉडी है इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. ठीक है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देयर बॉडी इज, आर्थ्रोपोडा की एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देयर बॉडी इज कवर्ड विद अ वेरी थिक टफ नॉन लिविंग like chitinous cuticle which is forms the exoskeleton in case of arthropoda. अब देखो आर्थ्रोपोडा के पास एक्सोस्केलेटन होता है, उनके पास एंडोस्केलेटन नहीं होता है. एक्सोस्केलेटन मतलब बॉडी के चारों तरफ, देयर द स्केलेटन इज एक्चुअली प्रेजेंट outside the body. ठीक है. So that is why they are called exoskeleton. So their exoskeleton, in case of arthropoda, the exoskeleton will be thick and it is made up of what? It is basically non-living. It is made up of, it is very thick and tough, and it is made up of non-living cutaneous cuticle. This is made up of what? Non-living cutaneous cuticle. ठीक है. Now next, the coelom is reduced in case of the adults. अब जो बॉडी कैविटी होती है वो इनके केस में क्या होता है, बहुत मिनिमम हो जाती है. बॉडी कैविटी इज एक्चुअली रिड्यूस्ड एंड they have a minimum body cavity at the adult stage. ठीक है. And only it is represented by the cavities of the reproductive and excretory organs. क्या कह रहा है कि जो एडल्ट स्टेज में इनका जो सीलोम होता है, बॉडी कैविटी होता है, ये धीरे धीरे घट जाता है और ये सिर्फ कुछ ही एरिया में रहता है. कहाँ पे मिलेगा हमें, वो भी हमें बताया मैंने, मिलता है आपका रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी ऑर्गन के पास, या फिर हम कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जहाँ पे है वहाँ पे हमें थोड़ा सा कैविटी मिल जाएगा एडल्ट स्टेज में बचा हुआ. और कहाँ पे मिलेगा, वी कैन सी इट इन द excretory organ. ठीक है. And their body is actually, the body cavity is filled with what? Fluid which is known as hemocoel. Hemocoel. The body cavity is filled with hemocoel. ठीक है. The body cavity is filled with hemocoel. ठीक है. Now next is the digestive tract. Now in case of this animal, this arthropoda, the digestive tract, just take a minute. Yeah. In case of this animal, that is the arthropoda, the digestive tract, it is actually complete. So digestive tract कैसा होता है, ये complete होता है. So they have complete digestive system.
So their digestive system is complete, or their digestive tract is, they have a complete, sorry, they have a complete digestive tract. ठीक है, या सिस्टम और सिस्टम, ठीक है, चलो. And the alimentary canal, what we can say, the alimentary canal, the alimentary canal is consist of स्टोमैडियम, जिसको हम कहते हैं फोरगट, देन दे हैव मिसेंट्रॉन, जिसको हम कहते हैं मिडगट, एंड proctodium, that is called your hindgut. So their entire alimentary canal can be divided into three different parts. One is your foregut, another one is your mesentron, that is called your midgut, and last one that is the hindgut, which is also known as proctodium. Okay. Now the blood vascular system in case of this arthropoda, it is what? It is irregular. It is having, they are having, or it is in case of the blood circulate system, blood vascular system, that is open type. और हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ओपन टाइप में क्या होता है कि इनसाइड द बॉडी ऑफ द एनिमल देयर आर सम स्पेसेस व्हिच आर प्रेजेंट, एंड दो स्पेसेस आर नोन एज साइनसेस और लकूने. सो हम क्या बोलते हैं? साइनसेस और लकूने, वेयर ऑल द इंपॉर्टेंट टिश्यूज एंड द ऑर्गन्स आर डिप्ड. तो वहां पे क्या होता है कि वन सेट ऑफ ब्लड वेसल विल ब्रिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड इट विल एम्प्टीड इनसाइड द साइनस, and the exchange of gases will take place inside the sinus, where all the important tissues and the organs are present, and then the deoxygenated blood will be taken away by another set of blood vessels. So that is actually happening in case of open circulatory system. Chalo. Now in case of the arthropoda, the respiratory organs, what they can have gills, they can have book gills. So the aquatic forms of arthropoda, those who are aquatic arthropods, they have gills. Those who are actually terrestrial, they may have a trachea, okay, or they can also have possibility that is there, they can also have lungs. It depends, ठीक है. तो ये वेरी करता है कि जो आर्थ्रोपोडा है वो कहाँ पे, उसका हैबिटेट क्या है. अगर पानी में है तो गिल्स हो सकता है, अगर लैंड में या आपके टेरेस्ट्रियल रीजन में रहता है तो उनके पास लंग्स भी हो सकते हैं. अब यहाँ पे क्या ना, कुछ और भी टर्म्स है, जैसे हम बोलते हैं बुक गिल्स या बुक लंग्स, गिल्स या लंग्स. तो इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें बस यही है कि इसका शेप जो होता है लंग्स का या बुक का, सॉरी गिल्स का, वो दिखने में हमें मतलब मॉर्फोलॉजी अगर हम देखेंगे तो हमें देख के इट इज जस्ट लुकिंग लाइक अ बुक. दैट्स व्हाई वी गिवन द नेम एज बुक लंग्स एंड बुक गिल्स. एज सच देयर इज नो like separate or like another special characteristic feature. ऐसा कुछ भी नहीं है, बस the shape is different. If it is because it is look like book, that's why we are given the name as a book lungs. इसमें कोई अलग फंक्शन है, अलग कुछ उसका स्ट्रक्चर है, डिटेल में पढ़ना नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है. चलो. Now for the excretion, what they have for the excretion, they can have green gland, Malpighian tubules, they can also have coxal gland. So अलग अलग तरह के एक्वेटिक और अलग अलग तरह के आर्थ्रोपोडा में अलग अलग तरह के एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमें मिलेंगे, ठीक है. तो अलग अलग ग्लैंड्स में मिल सकते हैं, जैसे एंटेनरी ग्लैंड है, ग्रीन ग्लैंड, उसके बाद कॉक्सल ग्लैंड, या हम जिसको कह सकते हैं आपका मल्पीजियन ट्यूब्यूल, ठीक है. तो अलग अलग तरह के जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है हमें मिलेगा अलग अलग आर्थ्रोपोडा में. ये डिपेंड करता है कि आर्थ्रोपोडा किस तरह का, मतलब आर्थ्रोपोडा का हैबिटेट क्या है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. नाउ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम कैसा है, जस्ट गिव मी अ मिनट. नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम, ठीक है. सो नर्वस सिस्टम इज जस्ट लाइक ऑलमोस्ट लाइक annelida, that is a nerve rings and a solid double ventral nerve cord with ganglia can be seen, ठीक है. तो नर्व रिंग कैसा, नर्व रिंग जो है हमें वो दिखेगा, एंड वी कैन फाइंड दैट अ सॉलिड डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड विथ गैंग्लिया कैन आल्सो बी सीन, कैन आल्सो सी, ठीक है. नाउ नेक्स्ट है सेंसरी ऑर्गन्स. सेंसरी ऑर्गन्स क्या क्या होगा, किसी ने कुछ पूछा है.
एनिलिडियंस, एनिलिडा, अभी तो पढ़ा था ना एनिलिडा, उसी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, चलो। सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन, अच्छा नोट में है, अच्छा ठीक है। अच्छा ये सारा पॉइंट तुम लोगों ने लिखा था क्या जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ? ये सारा लिख लिया है, ये पढ़ लिया क्या हम लोगों ने? अच्छा, तो वो, अच्छा मतलब हम लोगों ने ये जेल कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ लिया है ऑलरेडी, तो फिर मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? फिर तो हम क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे ना, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? हे भगवान। ओके, देखो आप ऐसी, आई नीड आई एम टेकिंग मेनी क्लासेस and maybe your classes your classes is actually after 3 days or after 4 days, so that's why what happens, I sometime forgot. So चलो, मुझे लगा कि शुरू से पढ़ाना है, ये तो सब लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, तो हम फिर से स्टार्ट करेंगे। चलो, then we should start from annelida, sorry, classification. Just give me 1 minute. चलो ठीक है, so we'll start classification. ठीक है, so we'll start classification. अब देखो क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं क्या है अर्थोपोडा में। सो ऑन द बेसिस ऑफ द बॉडी डिवीजन एंड द प्रेजेंस एंड द एब्सेंस ऑफ सर्टेन एपेंडेजेस, उसके बेसिस में हमने क्या किया है, फाइलम जो अर्थोपोडा है उसको हम कुछ क्लासेस में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन हम क्या देखेंगे कि द एंटायर फाइलम कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया. Now in this case most of the main criteria what we have, that is your body division and the presence and absence of certain appendages. ठीक है, तो उसके बेसिस में हम कैटेगराइज कर सकते हैं अर्थोपोडा को। एक मिनट, चल। This is the problem, like if we are at home taking online classes is little difficult comparatively. Okay, no issue, sometime it happens. I will try to come back as soon as possible and I can go to the institute take the classes. चलो, तो हम क्या कर सकते हैं, फाइलम को हम डिवाइड कर सकते हैं अर्थोपोडा को इन सर्टेन क्लासेस. सो व्हाट आर दोस क्लासेस? क्लास नंबर 1 दैट इज कॉल्ड क्रस्टेशिया. क्लास नंबर 1 क्या है? क्रस्टेशिया. क्रस्टेशिया क्लास नंबर 1 क्या है? इट इज क्रस्टेशिया. ठीक है, so the body is divisible into 3 different parts. One is your cephalothorax, that is head plus thorax and abdomen. अब क्रस्टेशिया के इसमें क्या होता है, बॉडी जो है वो डिवाइड होता है आपके 2 पार्ट में. एक होता है सेफेलोथोरैक्स, सेफेलोथोरैक्स
Cephalothorax means head plus thorax. Head plus thorax is called cephalothorax. And the next part what they have in their body, that is your abdomen. That is abdomen. ठीक है. Now dorsally what we can see, dorsally the cephalothorax is covered by a thick exoskeleton that is called carapace. जो cephalothorax होता है ना, ये हमें क्या दिखेगा, dorsally it is covered with a structure which is a tough structure, thick structure, which is also a part of exoskeleton. It's known as carapace. अभी मैं जब आपको आगे एग्जांपल देके डायग्राम देके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि जो cephalothorax है उसके ऊपर जो कवरिंग होता है एक्सोस्केलेटन का, उसको हम कहते हैं carapace. क्या कहते हैं उसको? Carapace. Let me write down. That is known as carapace. ठीक है, डायग्राम जब दिखाएंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी, सो डोंट वरी. ठीक है. Now there are, like in the there are they actually have two pairs of antennae and a pair of stalk compound eye. अगर हम देखेंगे तो इनके पास कितने pairs of antennae होते हैं? 2 pair of antennae होते हैं. और eyes कितने होंगे? 2 pairs of stalk eye they have. साक्षी पूछ रही, ये सब न्यू पॉइंट्स है क्या ऑर्थोपोडा के? कौन से पॉइंट्स? अभी तो मैं क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा हूँ, उसके पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिख लिया था आप लोगों ने, पूरा पार्थेनोजेनेसिस लिखा था या नहीं? ठीक से बात करो, क्लियरली बताओ मुझे. यू हैव रिटन ऑल द पॉइंट्स टिल पार्थेनोजेनेसिस? चलो वेरी गुड. अभी हम क्या पढ़ रहे हैं ना, हम इसके आगे पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, क्लासिफाई, कि हम आर्थोपोडा को कितने क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, वो पढ़ रहे हैं. ठीक है, क्लासिफिकेशन भी कर लिया. चलो क्लासिफिकेशन तो लिखा नहीं ना, ये लिख लिया उसको? चलो पहले इसको मैं एक बार पढ़ा दूंगा फिर लिखना. ठीक है, चलो मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा तब लिखना. चलो, so they have 2 pairs of antennae and like a pair of stalk compound eye. एग्जाम्पल हम क्या देखेंगे? पैलियोमॉन. पैलियोमॉन मतलब प्रॉन. एग्जाम्पल क्या है? पैलियोमॉन. पैलियोमॉन मतलब होता है प्रॉन. Prawn. You have all, not all, many of you I think like prawns, right? Jhinga. Yes. Okay. Okay. Can you give me a scientific name of prawn? नहीं पता? झींगा. सौरभ, हाँ ऑफलाइन में आओ फिर बताऊंगा मैं तुमको झींगा क्या है और साइंटिफिक नेम क्या है. कम ऑफलाइन ना, एंड देन यू गिव दिस आंसर इन माय क्लास, तब बताऊंगा मैं तुमको. ठीक है, अभी नहीं, तुमको अभी समझ में नहीं आ रहा है ना. let the offline class starts, then you will realize. चलो ठीक है. पैलियोमन बताया ना, that is a technical name. और उसके कुछ और एग्जांपल्स मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, जैसे पीनियस इंडिकस, ये एक है, हम इसको पढ़ेंगे. इंडियन वैरायटी है प्रॉन का, वो पढ़ेंगे हम, उसका डायग्राम लेके, उसको बोलते हैं पीनियस इंडिकस. ठीक है, चलो दूसरा एग्जांपल है जैसे एस्ट्रैकस. एस्ट्रैकस का कॉमन नेम है क्रेफिश. ठीक है, CRAY, क्रेफिश. अभी जो क्रेफिश है ये भी बहुत फेमस है, लेकिन इंडिया में उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, लोगों को उतना पता नहीं है. क्रेफिश पता है आप लोगों को? यू हैव एवर ट्राइड क्रेफिश?
नो, इंडिया में उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, कुछ जगह पे मिलता है। जैसे लॉबस्टर भी आप लोगों ने बहुत सुना तो होगा, बट आई थिंक यू हैव नॉट ट्राइड इट. So this crayfish, this lobsters, these are actually little uncommon in India. ठीक है, तो ये ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज या आपके जो चाइना, जापान, कोरियन कंट्रीज, इंडोनेशिया, यहाँ पे लोग कंज्यूम करते हैं काफ़ी मात्रा में. ये एक सी फूड है, ये समुद्र में पाया जाता है, क्रेफिश. ठीक है, चलो. हाँ, गोवा में भी मिलेगा. इफ यू गो टू गोवा और इन कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया, coastal parts where there is a rocky beach somewhere and the shelf, continental shelf is little bit rocky, we can find this type of fishes. This type of these are not fishes actually, these are coming under arthropoda. So this type of arthropodas we can find there, including crayfish or this lobster, etc., and even crabs. But crabs you'll find in not in the rocky shore, you'll find it in the mangroves area. क्रैब जो होता है ना, वो मैनग्रोव्स एरिया में मिलता है आपको, स्पेशली ब्रैकिश वाटर में मिलेगा. ठीक है, दैट इज ब्रैकिश वाटर. कहाँ पे होता है? एस्चुरीज में. यू नो व्हाट इज एस्चुरीज? व्हाट आर एस्चुरीज? यू नो क्या होता है एस्चुरीज? मैनग्रोव्स. यू नो मैनग्रोव्स कभी देखा है फोटो में? नहीं देखा है? गुड. सो मैनग्रोव एरिया में मिलता है. क्रैब तो देखा होगा ना, क्रैब. नॉर्मली इंडिया में जो क्रैब ज़्यादा से ज़्यादा बिकता है वो है सिल्ला सिरेटा, इंडियन मड क्रैब. सुंदरबन कौन लिखा है ये? सिद्धिराज. सिद्धिराज गए हो सुंदरबन कभी? अच्छा, रजियाने का एस्चुरीज ना. अच्छा, साक्षी म कह रही है मायापुर इज नॉट अ मैनग्रोव एरिया मैन. मायापुर इज अ प्रॉपर गैंजेटिक वैली. इट्स अ गैंजेटिक वैली. ठीक है. यस, रजिया ने सही बोला. सुंदरबन बहुत दूर है मायापुर से. चलो. वेयर माउथ ऑफ द रिवर. एक्चुअली सिंपली कह सकते हो वेयर द रिवर मीट्स विद द ओशन या और द सी वाटर. जहाँ पे रिवर के साथ सी वाटर मिक्स होता है, उस जो ट्रांजिशन जो जोन होता है, रीजन होता है, उसी वहीं पे होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एस्चुरीज. और वहाँ पे क्या होता है ना, जो वाटर होता है, इट इज नॉट fresh also and it is not that saline. उसको हम बोलते हैं brackish water. And the brackish water is the estuaries are one of the most most very very important and very very fertile place where you can find lot of different types of marine organism which will grow very lavishly and very happily, especially this prawn, crabs, and there are different types of fishes. All it will grow here. So most of the people who are actually those who are fishermen, they are living surrounding this estuaries. They used to go to the estuaries and they used to catch this prawn and this crabs or different types of fishes because it's a very fertile area. ठीक है, चलो. गणपति फुले. अच्छा, that is the place in Maharashtra, right? Where you can go and have you can see the mangroves. I think so. Ganpati Phule, yeah, right. Chalo, nice. ठीक है. So that was all about crustaceans. So next, the class number 2 we will discuss. Class number 2, that is your Chilopoda. ठीक है. Next is Chilopoda. Chilopoda. Now, Chilopoda, what we can see, the body is actually divisible into head and trunk. तो इनके पास जो बॉडी हो, इनका जो बॉडी होता है, इसमें प्रॉपर हमें जो थोरैक्स है वो हमें मिलता नहीं है. तो हम क्या कह सकते हैं उनके बॉडी, क्योंकि उनका जो एब्डोमिनल पार्ट होता है आफ्टर द हेड पार्ट, it is actually, it's a very elongated structure. So that is why we have given a different name. So we can divide their entire body into only two parts. So there is only two parts. One is your head
एक है हेड, उसके बाद सीधा क्या होगा, ट्रंक, इसीलिए हम इनको कहते हैं चिलोपोडा, ठीक है। एंड in Chilopoda what happens, the first pair of the appendages, इनका जो फर्स्ट पेयर ऑफ appendages होता है वो क्या होता है, ये those appendages actually get modified into poisonous claws। मान लो अगर ये इनका बॉडी है, ऐसा लॉन्ग बॉडी है, ये हेड पार्ट है, तो यहाँ पे इनका जो फर्स्ट जो appendages होगा, first pair of appendages, it is actually modified into claws and those claws are actually modified into claws and those claws are poisonous in nature, ठीक है। चलो एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे इसका तो कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है, एग्जाम्पल इज, किसी ने दिया है सेंटीपीड, यस योर राइट, सेंटीपीड, उसको हम कहते हैं स्कोलोपेंड्रा। क्या कहते हैं उसको, स्कोलोपेंड्रा, स्कोलोपेंड्रा, या कॉमनली हम कहते हैं सेंटीपीड। चलो नेक्स्ट है क्लास नंबर 3, क्लास नंबर 3 that is called Diplopoda, Diplopoda। Now the body in case of the Diplopoda, it is divided into thorax and abdomen, ठीक है, and each thoracic segment it bears a pair of legs। एग्जाम्पल है जुलूस, जुलूस, और हम जिसको कहते हैं मिलीपीड। तो होता क्या है कि इनका बॉडी पूरा इलांगेटेड होता है एंड द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू thorax and the abdomen, ठीक है। And what we can see that each segment, their body is actually segmented, and each segment we can see there is a pair of legs, pair of appendages is there, and if we see it, so it is visible or it appears that they have millions of eggs, millions of legs, बहुत सारे पैर हमें दिखते ऐसा लगता है देख के, and that is why we gave a name to them, that is called millipede। इसको हम क्या कहते हैं, millipede, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास नंबर 4, क्लास नंबर 4 इज इंसेक्टा, इंसेक्टा। देखो मैंने आपको शुरू में बताया था कि सबसे बड़ा फाइलम जो है वो है एनिमल किंगडम का, दिस इज योर आर्थ्रोपोडा, और सबसे बड़ा क्लास भी हमें इसी फाइलम में मिलेगा, मैंने बताया था, दैट इज योर इंसेक्टा। सो इंसेक्टा इज व्हाट, इंसेक्टा बेसिकली इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, उसको हम कहते हैं हेक्सोपोडा, हेक्सोपोडा, हेक्सोपोडा मतलब अगर ऐसा ऐसा कौन सा ऐसा कोई भी आर्थ्रोपोडा है जिनके पास like they have 6 podas, मतलब 6 legs अगर है, या 6 pairs of legs है, तो हम उनको कहते हैं हेक्सोपोडा, ठीक है। and the body can be divided into how many, not 6 pair actually, 6 legs, अगर 6 है तो उसको हम कहेंगे हेक्सोपोडा, और अगर कोई हेक्सोपोडा है तो उसको हम किस क्लास में डालते हैं, उस आर्थ्रोपोडा को विल कीप इन द ग्रुप ऑफ इंसेक्टा। तो इंसेक्टा का एक जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या हो गया, दे मस्ट बी, दे ऑल इंसेक्टा हेक्सोपोडा। सो बॉडी कैन बी डिविजिबल इनटू no 6 legs, not pairs, 6 legs, ठीक है। नाउ द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू हेड, thorax एंड एब्डोमेन। अभी इनका जो बॉडी है ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा, कौन सा, हेड, thorax एंड एब्डोमेन, हेड, thorax एंड एब्डोमेन। सो 3 पार्ट में बॉडी जो है वो डिवाइड होता है, हेड, thorax एंड एब्डोमेन। चलो एंड दे हैव अ पेयर ऑफ आईज, इनके पास कितना आईज होता है, दे हैव 1 पेयर ऑफ आईज, दे हैव 1 पेयर ऑफ आईज, इनके पास एक पेयर ऑफ आईज भी होता है, ठीक है। एंड व्हाट इज द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, मींस द व्हाट इज द मेन एक्सक्रीटरी substance what they are actually excreting out from their body, that is यूरिक एसिड। अपने बॉडी से ये सबसे जो मेन इनका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है,
यूरिक एसिड, दैट मीन्स दे आर यूरिकोटेलिक। ठीक है, जो अमीनो रिलीज करते हैं उसको हम कहते हैं अमोनोटेलिक, जो यूरिया रिलीज करते हैं उसको हम कहते हैं यूरियोटेलिक, और जो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं उनको कहते हैं यूरिकोटेलिक। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिल्वर फिश, कॉकरोच, उसके बाद अच्छा सिल्वर फिश जो है उसको आप ये इंसेक्ट है, नाम से आपको लगेगा हमें लिख बताया सिल्वर फिश, बट एक्चुअली दिस आर इंसेक्ट। तो ये सिल्वर फिश आपको कहाँ पे दिखेगा, ज़्यादातर देखना जब आप काफ़ी दिनों के बाद पुरानी किताबें खोलोगे तो उसमें आपको इस तरह का जो सिल्वर फिश है वो उसका शेप थोड़ा सा ऑलमोस्ट ऐसा होता है, देखो मैं जैसे बना रहा हूँ ऐसा होता है, और सामने इसके ऐसे एंटीना होते हैं, ये होता है सिल्वर फिश। और आपको किताब में ऐसे चलते हुए मिल जाएगा, देखा है कभी? पुराने किताबों को निकालोगे तो उसमें से चल के निकल के बाहर भागता है। ठीक है, यू हैव सीन दैट। वो जो इंसेक्ट है उनको हम कहते हैं सिल्वर फिश। नहीं देखा है? अभी मैं फोटो दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट गिव मी 2 minutes, आई लेट मी फिनिश दिस पार्ट एंड आई विल गो टू द इमेजेस, आई विल शो यू द इमेजेस। हाँ, जस्ट 2 मिनट, इसको खत्म कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट है अरिकनिडा। नेक्स्ट क्लास क्या है? क्लास नंबर 5। सो लेट मी क्लीन इट फर्स्ट। क्लास नंबर 5 अरिकनिडा। Arachnida. Now, in case of arachnida, the body is actually divisible into cephalothorax and abdomen. बॉडी को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 2 पार्ट में। एक होता है सेफेलो, नेक्स्ट होता है एब्डोमेन। cephalothorax and abdomen. Now cephalothorax, cephalothorax what they bears simple eyes. cephalothorax क्या करता है? It bears simple eyes. ठीक है, तो cephalothorax में क्या होता है? इनके पास simple eyes होते हैं। तो बेसिकली बॉडी हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 2 पार्ट में। एक होता है cephalothorax, दूसरा होता है एब्डोमेन। और इनके पास क्या होता है? दे हैव सिंपल आईज एंड 6 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस। इनके पास क्या होता है? सिंपल आई होता है, और ध्यान देखना 6 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस। लेकिन हम इंसेक्ट में क्या हमने देखा था? दे हैव 6 लेग्स। यस, किसी ने तो भेजा है अभी, वेरी गुड। कौन है? अक्षता? नहीं, आकांक्षा। साइज कितना होता है? छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। देखो अभी भेजा है इसने फोटो, सिल्वर फिश, नाम है सिल्वर फिश, क्योंकि उसका बॉडी का ऊपर का जो कलर होता है ना, इट इज ऑलमोस्ट लाइक सिल्वर, एंड उसका जो बॉडी का शेप होता है देखो फिश के जैसा होता है, सिर्फ शेप देखना। इसीलिए हम इसका नाम क्या रख दिया साइंटिस्ट ने? सिल्वर फिश। ठीक है, so in case of the arachnida, what they have simple eyes, they have 6 pairs of legs, sorry, they have 6 pairs of appendages, and the antenna are absent. इनमें एंटीना जो होता है वो एब्सेंट होता है। एंड दे हैव बुक लंग्स। अगर बुक लंग्स अगर देखेंगे तो हमें कौन से अर्थोपोडा में मिलता है? अरिकनेडा में हमें बुक लंग्स मिलता है। क्यों? इस पे मैंने पहले बताया, इट इज जस्ट लुक लाइक अ बुक, बुक लाइक बुक जैसा दिखता है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया है? बुक लंग्स। देयर इज नो स्पेशल इन लाइक डिस्कशन इज रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल क्या है? स्कॉर्पियन, स्पाइडर, these are example. Now class number 6, Onsiophora. Class 6, Onsiophora. Class 6, Onsiophora. ठीक है, एग्जाम्पल है इसका पेरीपेटस। क्लास नंबर 7 है मेरिस्टोमेटा, एग्जाम्पल है लिमुलस। ठीक है, क्लास नंबर 7 क्या है? क्लास नंबर 7 दैट इज योर मेरिस्टोमेटा, एग्जाम्पल है आपका लिमुलस। लिमुलस को हम कॉमनली कहते हैं हॉर्सशू क्रैब। ठीक है, so now I will show you the images, and also I will show you the slide.
सॉरी। चलो एक बार दिखा देते हैं, फिर आप देखना। So these are the different types of animals what you have discussed, जैसे देखो सेंटीपीडा, पैलियोमॉन, ठीक है, मिलीपेड, कैंसर दैट इज क्रैब, पेरिपेटस, लिमुलस। सो these are different types of arthropoda, ठीक है। चलो लिखना शुरू करो, और मुझे पता हो गया तो जल्दी से लिखो। लिखिए। सर आप 7 क्लासेस पढ़ाने वाले हैं? क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। तो 7 क्लास आप पढ़ाने वाले हैं क्या? 7 क्लास हाँ मतलब? सर, मतलब वो 7 क्लासेस है ना आर्थोपोडा के, तो वो आप पढ़ाने वाले हैं क्या? अच्छा, डिटेल में क्या पढ़ाने वाला हूँ क्या? हाँ सर। नहीं, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में क्लास उतना डिटेल में नहीं है। तो जस्ट फॉर आवर इन्फॉर्मेशन कि थोड़ा सा हम, क्योंकि अभी नीट का सिलेबस अपडेट होता है, पहले एम्स भी होता था, तो उस पर हम पढ़ते थे, ठीक है। इसीलिए हम थोड़ा सा पढ़ के रखेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, और उसका थोड़ा एक एग्जाम्पल पढ़ के रखेंगे, बस इतना ही। बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं पढ़ना तुमको क्लास? 7 लिख लिया दिया था या? इस हाँ बोलो। सर, इधर 7 दिया था इसलिए पूछा सर, क्योंकि अभी हमने 4 किए हैं इसलिए। 4 किया है? अभी स्क्रीन में आपको दिख रहा है ना, आपने बोला था इसके पहले वाले से पार्थोनोजेनिस तक आप लोगों ने लिखा है ना, दिस वाज द लास्ट पेज ऑफ रिटन, बोलो ये था, यहाँ तक लिखा है कि नहीं? यहाँ तक लिखा है ना? हाँ हाँ। तो इसके बाद देखो, मैं आपको जो भी पढ़ाया वो सारा नोट्स आपको मिलेगा, सो डोंट वरी। जितना पढ़ाया उसको सब नोट्स मिलेगा। क्लास हमारे सिलेबस में उतने डिटेल में नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, लेकिन हम पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि नीट का सिलेबस अपडेट होता है हमेशा,
ठीक है। और पहले क्या था, नीट से पहले अभी एम्स को भी एक साथ कर दिया है। पहले एम्स अलग होता था, उसके बाद एएफएमसी जिपमर अलग होता था, तो सबके सिलेबस में क्या थोड़ा अलग अलग होता था। एम्स में हम थोड़ा सा क्लास भी पढ़ते थे, तो फ्यूचर में हमें नहीं पता, इसीलिए हम थोड़ा पढ़ के रखेंगे। अगर फ्यूचर में जब आप 2021 में आपने अभी एडमिशन लिया है, तो ऑब्वियसली आप एग्ज़ाम 2023 में दोगे, तो 2023 आते आते अगर कोई भी अपडेट हुआ, अगर थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ा, इसीलिए हम जैसे पहले पढ़ते थे एम्स के लेवल का, इसीलिए हम थोड़ा सा वो पढ़ के रखते हैं। फिर से मैं दोहराऊँ ना इस चीज़ को, ये मत समझना कि सर सिलेबस में नहीं है आप क्यों पढ़ा रहे हो। तो ज़्यादा इसमें हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम थोड़ा सा जितना हमें एम्स लेवल का पढ़ना चाहिए, एएफएमसी लेवल या जिपमर लेवल का पढ़ना चाहिए, उतना हम पढ़ के रखेंगे। कल को अगर थोड़ा सा भी सिलेबस आगे पीछे हुआ, तो हमें कोई ट्रबल नहीं होगा। दैट इज द पर्पस। इट इज नॉट माई पर्पस टू ओवरबर्डन यू, द पर्पस इज टू मेक यू रेडी, दैट्स ऑल। समझ लो। थोड़ा सा लेंदी आपको लगेगा एनिमल किंगडम, बट थोड़ा मेहनत करोगे आप, तो फ्यूचर में आपको और ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। मान लो अगर थोड़ा सा भी चेंजेस आए फिर सिलेबस में, या कुछ भी फ्लैक्चुएशंस हो, क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल एम्स को नीट में ऐड कर दिया गया था, और उसके पहले नीट जो था अलग होता था, और एम्स का भी होता था अलग से। तो इसीलिए एम्स जो है जब ऐड हो गया है, तो एम्स का जो सिलेबस है और जो नीट का जो सिलेबस है, उसमें थोड़ा तो चेंजेस होना ही चाहिए ना। तो वो हो सकता है फ्यूचर में, इसीलिए हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और ऐसे भी हम एम्स लेवल तक इतना पढ़ाते थे। ठीक है, जो मतलब एस्पायर करता था कि सर हमको एम्स भी देना है, अभी कोई भी नीट एस्पिरेंट है तो एम्स भी देना चाहता था, तो इसीलिए हम इतना तो हम पढ़ते हैं, देख पढ़ते हैं। आप कोई भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, आकाश में जाओ या आप एलन में जाओ, तो वहाँ पे इतना तो बेसिक्स पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो उतना पढ़ते हैं हम। रीज़न क्या है कि हम रेडी रहते हैं कि अगर सिलेबस थोड़ा आगे पीछे हुआ तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। ऐसे अगर एनसीईआरटी का अगर बुक आप खोल के देखोगे, तो हर एक फाइलम बस दो दो पैराग्राफ में ख़त्म हो चुका है। वैसे पढ़ाएंगे तो तुम्हारा एनिमल किंगडम तो मैं 2 हफ्ते में ख़त्म कर दूंगा, उतना भी नहीं लगेगा, अब वैसे पढ़ेंगे तो। ठीक है चलो यहाँ तक लिखा है। हाँ बोलो, बोलो। डन। डन ना। चलो फिनिश।
लिख लिया है तो बताना। लिख लिया है तो बताना। Sir, completed. Done.
हो गया यहाँ तक? अरे am I audible? Yes, sir, done. बीच में नेटवर्क चला गया था ना? In between there was no network, right? It happened sometime in between. ठीक है, चलो तो उसके आगे करेंगे. This is the next page. चलो
चलो लिख लिया। तो बोलो ना, लिख लिया तो खत्म करो। फिनिश इट। See, I already told you that when this, yeah, बोलो. Sir, above part is remaining. Our part is remaining. कहाँ तक? This one. हाँ, तो लिखो, फटाफट लिखो, जल्दी लिखो, थोड़ा जल्दी लिखना सीखो, बहुत बड़ा सिलेबस है, इतना स्लो होने से नहीं होगा, तुम लोग बहुत स्लो हो। लर्न हाउ टू राइट फास्ट। और तुमको मैं अगर ये पीडीएफ भेजता हूँ, पीडीएफ मिलेगा आपको, सिर्फ अभी नहीं मिलेगा, जब खत्म हो जाएगा टॉपिक उसके बाद भेजूंगा। तुमको पहले भेजता हूँ तो तुम लोग रख देते हो, लिखते भी नहीं हो। और क्लास में ड्यूरिंग द क्लास अभी ऑफलाइन में होगा तो वहाँ पे लिखना होगा ना, वहाँ पे तो मैं पढ़ाऊंगा, कुछ पॉइंट्स बोर्ड पे लिखूंगा, कुछ तो डिक्टेट करूंगा मैं। सो यू नीड टू मीन्स लर्न द हैबिट ऑफ राइटिंग फास्ट। बहुत लिखना है बायोलॉजी में, कंटेंट बहुत है बायोलॉजी में, फटाफट लिखना सीखो। इतना कहाँ टाइम है किसी के पास, खत्म करना है हमें सिलेबस जल्दी से जल्दी। सर व्हाट इज एस्टेनिया? क्या? कहाँ पे देखा? वेयर यू हैव सीन इट? Fourth class. There is a pair of देयर इज अ पेयर ऑफ, फोर्थ क्लास, अच्छा। अब देयर इज अ पेयर ऑफ एंटीने, there is a pair of antennae, 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 and a pair of compound eyes. Uric acid is the chief excretory waste. Example of this class are silverfish, cockroach, bedbug, etc. Yes, sir, done.
ठीक है, चलो करो इसको। लिख लिया तो बताना। Yes, sir, completed. ओके, द लास्ट टू लिख लो, 30 सेकंड लगेंगे इसको लिखने के लिए। हो गया?
चलो हो गया ना? ओके, क्लास एक बार दिखाओ। देखो फटाफट। हो गया ना? डन। हो गया? चलो, so let us continue. अच्छा, किसी ने कुछ पूछा है क्या? मैंने बताया ना, हम मैं जब उस पेज में जाता हूँ ना तो मुझे यहाँ पे नहीं दिखता है। चलो देखते हैं किस क्या पूछा है। लेट मी सी। देख लेते हैं। कहाँ है साक्षी, क्या डाउट पूछा है आपने? बॉडी डिविजिबल इनटू हेड। अच्छा, आपने लिख नहीं पाया आपने। ठीक है, मैं जब पीडीएफ भेजूंगा ना तो उसमें आप कर लेना, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। Yes, peripetus is the connecting link between annelida and ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट जो है मैं थोड़ा आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। अभी एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे एक्चुअली थोड़ा सा। एग्जाम्पल क्या है, इसके बाद हम जैसे पेरिपेटस आपने बोला तो उसके बारे में ही पहले पढ़ेंगे। तो पेरिपेटस जो है, इट इज एक्चुअली कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द आर्थ्रोपोडा एंड द एनालिडा। और कनेक्टिंग लिंक क्या है, मैंने आपको काफी बार बताया है। मेनी टाइम्स आई हैव डिस्कस्ड विद ऑल ऑफ यू। द पेरिपेटस इज कॉमनली नोन एज वॉकिंग वॉर्म। इसको कहते हैं ना वॉकिंग वॉर्म, इसको कहते हैं वॉकिंग वॉर्म। सर, स्टारफिश इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिशेस एंड एम्फीबियंस। अभी आने दो तब बताऊंगा वो। अभी जो बता रहा हूँ पहले वो तो सुन लो। So it is very important because why it is very important? Because it is a connecting link between the annelida and the arthropoda. The connecting link term मतलब हमें पता है, it is a living organism which actually shows the characteristics of the two groups. ऐसा कोई living organism जो कि दोनों ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक शो करता है उसको हम कहते हैं कनेक्टिंग लिंक। ठीक है। नाउ इन दिस केस पेरिपेटस इज द कनेक्टिंग लिंक। तो क्या क्या सिमिलैरिटीज है थोड़ा बता देते हैं आज ज़्यादा टाइम है नहीं, मैं थोड़ा बता के अभी आज छोड़ दूंगा। जैसे कि देखो, एनिडा का जैसे सेगमेंटेड बॉडी है, वॉर्म लाइक बॉडी है। आर्थ्रोपोडा का क्या है? इट इज आर्थ्रोपोडा का कौन सा कैरेक्टर? अच्छा, एनिडा का क्या कैरेक्टर है वो देख लेते हैं पहले। सेगमेंटेड बॉडी है, वॉर्म लाइक बॉडी है, अनजॉइंटेड अपेंडेजेस है, नेफ्रिडिया है एक्सक्रीशन के लिए,
अच्छा, आर्थ्रोपोडा का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? हीमोसील है, रेस्पिरेशन के लिए ट्रैकियरी सिस्टम है ना। चलो, तो ये जो सारा जो है सिमिलैरिटीज एनिलिडा और किसके बीच में? आर्थ्रोपोडा के बीच में, ठीक है। इसीलिए हम पेरिपेटस को कहते हैं वॉकिंग वॉर्म, सॉरी कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। तो आज इतना ही पढ़ेंगे, कल अगली क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे, और जो भी अदर एग्जाम्पल्स है आर्थ्रोपोडा के वो हम एक एक करके विद डायग्राम पढ़ेंगे, ठीक है। और यू डोंट वरी अबाउट द नोट्स, पहले यहाँ पे लिख लो, जो भी बच जाता है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, मैं जब पीडीएफ भेजूंगा उसको लिख लेना, ठीक है। चलो, ओके देन। ठीक है, चलो बाय।